Hello, listening friends. We are delighted you joined us again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। We have begun a series of messages on the fruit of the Spirit. हमने आत्मा के फल पर एक संदेश श्रृंखला प्रारंभ की है। And in our last broadcast, we learned what it means to be filled with the Holy Spirit. और अपने पिछले प्रसारण में हमने जाना कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या अर्थ है। We learned that when we are filled with the Holy Spirit, our lives begin to manifest the fruit of the Spirit. हमने सीखा कि जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो हमारे जीवन आत्मा के फल को प्रकट करने लगते हैं। A list of the fruit is in the scripture. फल की सूची वचन में दर्ज है। Today we are going to begin learning about the first of this fruit, which is love. आज हम इनमें से पहले फल के बारे में सीखना प्रारंभ करेंगे जो कि प्रेम है। If I ask you which word in the English language is more abused, misused, and wrongly overused than any other word, what would you say? यदि मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी भाषा में कौन से शब्द का सबसे अधिक दुरुपयोग, दुर्व्यवहार और गलत तरीके से हद से अधिक प्रयोग किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? The word is love. वो शब्द है प्रेम। It is misused probably more than any other word. शायद इस शब्द का किसी भी और शब्द से सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। Let us examine this for a moment. आइए एक पल के लिए इसकी जांच करें। I have met some parents who refuse to discipline and train their children and they let them run wild. मैं ऐसे माता पिताओं से मिला हूं जो अपने बच्चों को प्रशिक्षित करना और अनुशासित करना नहीं चाहते और उन्हें बेकाबू दौड़ने देते हैं। And they say they do this because they love their children. और वो कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। There are some husbands and wives who refuse to be honest with each other and transparent with each other, and they call that love. कई ऐसे पति और पत्नियां हैं जो एक दूसरे के साथ वफादार और पारदर्शी रहने से इनकार करते हैं और वो इसे प्रेम कहते हैं। Friends don't speak the truth with each other and call that love. मित्र एक दूसरे के साथ सच नहीं बोलते और इसे प्रेम कहते हैं। They say, I just don't want to hurt his feelings. वो कहते हैं बस मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। They claim it is out of love that they do not speak the truth to their friends. वो कहते हैं कि प्रेम ही वो वजह है कि वो अपने मित्रों के साथ सच नहीं बोलते। What kind of love is this? ये कैसा प्रेम है? There are many churches that refuse to condemn sin or call wrong wrong, and they call that love. बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो पाप की निंदा करने या गलत को गलत नहीं कहना चाहती और वो इसे प्रेम कहते हैं। What kind of love is that? ये किस प्रकार का प्रेम है? On the television and the movie screens, there are all kinds of lusts and selfishness, all presented to us as love. टेलीविजन पर और सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली सब तरह की वासना और स्वार्थीपन सब हमारे सामने प्रेम के रूप में पेश किया जाता है। In July of 99, the city of Berlin in Germany, सन 1999 जुलाई जर्मनी के शहर बर्लिन में 1.5 million young people from all over the world came to that city to what they call Love Festival. पूरे संसार से करीबन 15 लाख लोग इस शहर में एक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए जिसे उन्होंने प्रेम उत्सव का नाम दिया। When the organizers were interviewed by a BBC correspondent, he was asked, जब इस उत्सव के प्रबंधकों से एक वार्तालाप में बीबीसी चैनल के एक पत्रकार ने उनसे पूछा, would it not be more accurate to call it Lust Festival? इस उत्सव को वासना उत्सव कहना ज्यादा सही नहीं होता? The organizer replied, that is what it is, but calling it Love Festival sounds much better. प्रबंधक ने उत्तर दिया, हाँ असल में है ये वही, परंतु इसे प्रेम उत्सव पुकारना ज्यादा अच्छा लगता है। I can tell you that probably there was never a time since the time of the early church when the concept of love has been more confused than our time. मैं आपको बता सकता हूं कि शायद प्रथम कलीसिया से लेकर कभी ऐसा समय नहीं आया जितना कि आज हमारे समय में प्रेम का विषय उलझाया गया हो। I must admit I've lost a lot of sleep over this issue. मैं बताना आवश्यक समझता हूं कि इस विषय के कारण मेरी नींद उड़ गई है। Our world is thoroughly confused. हमारा संसार संपूर्ण रूप से उलझन में फंस गया है। Yet in the midst of this utter distortion and complete disfiguring of the real meaning of that beautiful word, तो भी इस खूबसूरत शब्द के वास्तविक अर्थ को पूर्ण विकृत और संपूर्ण कुरूप बनाए जाने के मध्य में भी we are under obligation not only to restore the real meaning of the word but to practice it.
हमारी जिम्मेवारी है न केवल इस शब्द के असल अर्थ को बहाल करने की, बल्कि इसे व्यवहार में भी लाने की। Some cynics define love as what happens between a man and a woman when they know each other well. कुछ कटु स्वभाव लोग प्रेम की व्याख्या उससे करते हैं जो एक पुरुष या स्त्री के बीच में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने से होता है। Another cynic said love is temporary insanity curable by marriage. एक और निंदक ने कहा प्रेम अस्थाई पागलपन है जिसका इलाज है शादी। Now I heard a story about a young man who proposed to his girlfriend. अब मैंने एक नौजवान के बारे में कहानी सुनी जिसने अपनी महिला मित्र के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। As they sat together looking over a beautiful lake, he said to her, झील के किनारे बैठकर झील की सुंदरता को निहारते हुए लड़के ने लड़की से कहा, Darling, I want you to know that I love you more than anything else in the world. प्रिय, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं संसार में तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। I want you to marry me. मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। I am not wealthy and I'm not rich. मैं दौलतमंद और अमीर नहीं हूँ। I don't have a yacht or a Rolls Royce like John Brown. मेरे पास कोई महंगी कश्ती या जॉनी ब्राउन की तरह कोई महंगी कार नहीं है। But I do love you with all my heart. परंतु अपने संपूर्ण दिल से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। His girlfriend thought for a moment and then she replied, लड़की ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, I love you with all my heart too, but tell me more about Johnny Brown. मैं भी तुमसे दिल से प्रेम करती हूँ, परंतु मुझे जॉनी ब्राउन के बारे में और बताओ। One of the most important challenges to biblical love is how to practice it. बाइबल अनुसार प्रेम करने की एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए। First, we need to understand it and then we need to practice it. सबसे पहले हमें इसे समझने की जरूरत है और फिर इसे व्यवहार में लाने की। Because biblical love is the opposite of everything the world calls love. क्योंकि बाइबल अनुसार प्रेम उस सब से विपरीत है जिसे ये संसार प्रेम कहता है। And that is why it is listed first in this most important among the fruit of the Spirit. और इसी कारण सबसे महत्वपूर्ण आत्मा के फल की इस सूची में ये सबसे पहले आता है। Turn with me now to Galatians chapter 5 verses 22 and 23. आइए अब मेरे साथ गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 22 और 23 पद को देखिए। We heard this scripture in the last broadcast, but let us review it again. वचन के इस भाग को हमने पिछले प्रसारण में भी सुना था, परंतु आइए इसे फिर से देखें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Some writers have insisted that in the context of this passage, love is not only the first in the list of the fruit of the Spirit. इस भाग के परिप्रेक्ष्य में कुछ लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मा के फल की सूची में प्रेम केवल सबसे पहले ही नहीं आता, But it is synonymous with the fruit of the Spirit. परंतु ये आत्मा के फल के समानार्थी है। Why? क्यों? Because love encompasses all the other characteristics in the fruit of the Spirit. क्योंकि प्रेम आत्मा के फल में बाकी सभी गुणों को समेटे हुए है। Love, as the first fruit of the Spirit, is not merely pleasant emotion आत्मा के पहले फल के रूप में प्रेम केवल सुखद भाव ही नहीं है or a good feeling, या एक अच्छा एहसास, but love primarily is self-giving. परंतु प्रेम मुख्य रूप से आत्म बलिदानी है। My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you because I don't want you to misunderstand. मेरे श्रोता मित्रों, जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसे गलत तरह से समझें। True biblical love is not accurately demonstrated when everything is just going wonderful. बाइबल अनुसार और सच्चा प्रेम तब यथार्थ प्रदर्शित नहीं होता जब सब कुछ बढ़िया चल रहा। True and biblical love is not accurately manifested in the times of plenty and abundance. बाइबल अनुसार और सच्चा प्रेम बहुतायत और भरपूरी के समय में प्रकट नहीं होता। True biblical love is not accurately portrayed when everything is brand new with the loved one. बाइबल अनुसार प्रेम तब यथार्थ प्रकट नहीं होता जब अपने प्रिय के साथ सब कुछ पूर्ण नया होता है। True love can only be visible in the tough times and in the testing times. सच्चा प्रेम केवल कठिन और परीक्षा के समय में ही नजर आ सकता है। True love can only be manifested in its fullness during times of stress and strain in life. सच्चा प्रेम अपनी परिपूर्णता में केवल तनाव और खिंचाव के समय में ही प्रकट हो सकता है। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा,
How can you truly demonstrate biblical love when you have just fallen in love? आप सच्चाई से बाइबल अनुसार प्रेम कैसे दर्शा सकते हैं जबकि आप अभी अभी प्रेम में पड़े हैं? True biblical love comes after a few years in marriage. सत्य और बाइबल अनुसार प्रेम शादी के कुछ वर्षों बाद पैदा होता है। What with diapers and bills and snoring and sickness and balancing checkbooks and pressures at work and loneliness at home. जो कि बच्चों के गंदे कपड़ों, खर्चे, खर्राटे, बीमारी, चेकबुक को सही रखना, काम का दबाव और घर में अकेलापन, Those are the times when true love is demonstrated. ये हैं वो समय जिनमें सच्चा प्रेम प्रकट होता है। Some wives would tell you that their husbands are courteous and thoughtful in public like he used to be before they were married. कुछ पत्नियां आपको बताती हैं कि उनके पति शादी से पहले की तरह ही आज भी सार्वजनिक रूप से विचारशील और सुशील हैं, But they are rude and selfish at home. परंतु घर में वो कठोर और स्वार्थी हैं। Similarly, the husbands say wives are gracious and vivacious in the crowd, just like they were before they were married. इसी प्रकार से पति कहते हैं कि पत्नियां भीड़ में तो शादी से पहले के समान ही दयालु और रोचक हैं, But they are moody and cold at home. परंतु घर में वो जिद्दी और ठंडे स्वभाव की हैं। Too often, when we are hurt by the loved one, we want to inflict hurt back. बहुत बार जब हम अपने किसी प्रियजन से आहत होते हैं तो हम वापस चोट पहुंचाना चाहते हैं। But if the first fruit of the Spirit is love, then love says, you do not render evil for evil. परंतु यदि आत्मा का पहला फल प्रेम है तो प्रेम कहता है कि तुम बुराई का बदला बुराई से न दो। Romans 12:17 says, do not repay anyone evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everybody. रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 17 पद कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई न किया करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। For wives, that means that when your husbands wrong you or disagrees with you, you must exhibit the first fruit of the Spirit, which is love. पत्नियों के लिए इसका अर्थ है कि जब आपके पति आपसे अनुचित व्यवहार करें या आपके साथ सहमत ना हो, तो तुम्हें आत्मा के पहले फल का प्रदर्शन करना चाहिए, जो कि प्रेम है। For husbands, that means that when your wife wrongs you, you do not leave, but you exhibit the first fruit of the Spirit, which is love. पतियों के लिए इसका अर्थ है कि जब आपकी पत्नी आपसे अनुचित व्यवहार करे तो आप उसे छोड़ ना दें, परंतु आत्मा का पहला फल प्रदर्शित करें, जो कि प्रेम है। Love as a fruit can only be truly manifested precisely at these hurtful times. एक फल के रूप में प्रेम सच्चाई से केवल ऐसे ही चोटपूर्ण समय में यथार्थ रूप में प्रकट किया जा सकता है। At these angering times. ऐसे ही क्रोधपूर्ण समयों में, At these irritating times. ऐसे ही विचलितपूर्ण समयों में। For parents, loving your teenager in the midst of one of their raving and ranting times is truly exhibiting the fruit of the Spirit. माता पिताओं के लिए अपने नवयुवक बच्चों के उल्टा सीधा बोलने और खींचने के समयों में उनसे प्रेम करना ही आत्मा के फल का सच्चा प्रदर्शन है। For children, loving your parents when they refuse to let you do what you want to do is truly manifesting the fruit of the Spirit. बच्चों के लिए अपने माता पिता से तब भी प्रेम करना जब वो आपको आपकी मर्जी ना करने दे, ऐसा प्रेम ही आत्मा के फल का सच्चा प्रदर्शन है। To all Christians, loving a Christian brother or sister when you know that they have deeply wounded you, सभी मसीहियों के लिए एक मसीही भाई या बहन से प्रेम करना जबकि आपको पता है कि उन्होंने आपको अंदर तक चोट पहुंचाई है, that is the real time when the first fruit of the Spirit is manifested. वही असल समय है जब आत्मा का पहला फल प्रकट होता है। For most Christians, when everything is going well, they will tell you how much they love God. अधिकतर मसीहियों के लिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वो आपको बताएंगे कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। But let them face a slight financial reversal, and guess who gets cut out of their budget? परंतु बस उन्हें जरा सी आर्थिक तंगी आने दीजिए और अंदाजा लगाइए कि उनके बजट में से किसका हिस्सा कटता है। God, परमेश्वर का, whom they say they love. उस परमेश्वर का जिससे वो कहते हैं कि वो प्रेम करते हैं। They don't stop purchasing one of the many things they buy. वो उन वस्तुओं में से एक भी वस्तु खरीदना बंद नहीं करेंगे जो वो लगातार खरीदते हैं। No. नहीं, But they stop giving their money to God, परंतु वो परमेश्वर को पैसा देना बंद कर देते हैं, the one whom they claim to love so much. उसको जिससे वो बहुत प्रेम करने का दावा करते हैं।
So many years ago, someone came to talk to me about tithing and offering and giving. बहुत साल पहले एक व्यक्ति दशवांश, भेंट और दान के बारे में बात करने के लिए मेरे पास आया। He said that he could not afford to give tithes and offerings at that time because they were purchasing a second apartment. उसने कहा कि वो उस समय दशवांश और दान नहीं दे सका क्योंकि वो एक और घर खरीद रहे थे। I told him that was fine. मैंने उससे कहा ठीक है, You would have no argument with me. मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करूंगा। He looked at me and said, Are you serious? उसने मेरी तरफ देखा और कहा क्या तुम सच कह रहे हो? I said, I'm completely serious. मैंने कहा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। You will have no argument with me, but don't tell me that you love God. मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करूंगा, परंतु मुझसे ये मत कहना कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। Let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। In the book of Acts, when Barnabas sold a piece of land in Cyprus which he owned, he took the money and placed it all at the feet of the disciples. प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब बरनबास ने साइप्रस में अपनी कुछ जमीन बेची और इसका पैसा लेकर प्रेरितों के पैरों पर रखा, There were a couple in the church of Jerusalem at that time who wanted synthetic sainthood. उसी समय यरूशलेम की कलीसिया में एक पति पत्नी थे जो ऐसी ही संत पदवी चाहते थे। Oh, they thought if Barnabas can do it, we can do it too. उन्होंने सोचा भाई अच्छा है, यदि बरनबास ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। So they went out and they sold a piece of property before they went to the apostles. तो प्रेरितों के पास जाने से पहले वो गए और अपनी जमीन का एक भाग बेच दिया। Except they did one thing before they went to the apostles. They left a good portion of it at home. प्रेरितों के पास जाने से पहले एक उन्होंने अलग काम किया, उस जमीन के पैसे का अच्छा हिस्सा घर पर छोड़ गए। So when they placed it at the feet of the apostles and Peter said, Is this the price of the land? तो जब उन्होंने बाकी पैसा ले जाकर प्रेरितों के पैरों पर रखा तो पतरस ने कहा क्या जमीन का सारा पैसा यही है? And they said yes. और उन्होंने कहा हाँ। And Peter said, Why did you have to lie to the Holy Spirit? और पतरस ने कहा तुम्हें पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोलना पड़ा? Here's what he said to them. उसने उनसे ये कहा, He said, When you sold the land, was it not yours? उसने कहा जब तुमने जमीन बेची क्या ये तुम्हारी ना थी? They said yes. उन्होंने कहा हाँ। He said, And when you sold it, was not the money yours? पतरस ने कहा जब तुमने इसे बेचा तो क्या इसका पैसा तुम्हारा न था? They said yes. उन्होंने कहा हाँ। He said, You did not have to give it. उसने कहा तुम इसे देने के लिए बाध्य नहीं थे। My listening friends, are you listening carefully to this? मेरे श्रोता मित्रों, क्या आप ध्यानपूर्वक इसे सुन रहे हैं? Because Peter said to the couple, क्योंकि पतरस ने उन दोनों पति पत्नी से कहा You have lied to the Holy Spirit of God. तुमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। And both of them dropped dead on the spot. और वो दोनों पति पत्नी वहीं गिरकर मर गए। You can read the story for yourself later. You'll find it in the Bible, in the book of Acts, chapter 4, verses 36 to chapter 5, verse 5. आप इस कहानी को बाद में खुद पढ़ सकते हैं। ये आपको बाइबल में प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय उसके 36 पद से 5 अध्याय के 5 पद में मिलती है। Now, you cannot say that you love God when you keep Him out of your pocketbook. तो आप ये नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं जबकि आप उसे अपनी जेब से अलग रखते हैं। Because God Himself said in Matthew 6:21, Where your money is, there is your love. क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 21 पद में परमेश्वर ने खुद कहा जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा प्रेम है। I know it says heart in the Bible, but that's really what He meant. मुझे पता है कि बाइबल में यहाँ पर मन लिखा है, परंतु असल में उसका यही अर्थ था। Where your money is, that's where your love is. जहां आपका धन है वहीं आपका प्रेम है। Loving God can only be manifested when you make an offering of money to God first, not cut Him out and make Him last. परमेश्वर से प्रेम तभी दर्शाया जा सकता है जब आप सबसे पहले परमेश्वर को पैसे की भेंट चढ़ाते हैं, न कि उसे अलग करके अंत में उसके लिए ऐसा करना। I want to tell you something from personal experience. मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Biblical love is a challenge to end all challenges. बाइबल अनुसार प्रेम सभी चुनौतियों को समाप्त करने की चुनौती है। More than temptations and more than anything else, biblical love is the challenge that ends all challenges. परीक्षाओं से और किसी भी चीज से अधिक बाइबल अनुसार प्रेम वो चुनौती है जो बाकी सभी चुनौतियों को समाप्त करती है। And that is precisely why we talk about it much, but we understand it little. और ठीक इसी कारण हम इसके विषय में इतनी बात करते हैं परंतु हम समझते बहुत कम है।
We don't take it seriously and we practice it little. हम इसे गंभीरता से नहीं लेते और इसे व्यवहार में बहुत कम लाते हैं, Because it is such a challenge that we don't comprehend it. क्योंकि ये ऐसी बड़ी चुनौती है कि हम इसे समझ नहीं पाते। The world tells us that we have the right to react any way we want to the evil that is done to us, and if necessary, get even. संसार हमें बताता है कि यह हमारा अधिकार है कि जो बुराई हमारे साथ की जाती है हम जैसे चाहें उसका जवाब दें और जरूरी हो तो बराबर का जवाब दें। But I've noticed that we are running out of time and will have to stop. परंतु मैंने ध्यान दिया है कि हमारा समय समाप्त हो रहा है और हमें रुकना होगा। We will learn more about this challenge of love in the next broadcast. हम प्रेम की इस चुनौती के विषय में अगले प्रसारण में और अधिक जानेंगे। We will discover what biblical love is and where each of us gets the power to produce this spiritual fruit. हम देखेंगे कि बाइबल अनुसार प्रेम क्या है और ये आत्मिक फल पैदा करने की शक्ति हम में से प्रत्येक को कहां से प्राप्त होती है। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।